तो इसलिए मिक्सअप हो रहा है काफी। तो द थिंग इज, सबसे पहले मैंने आपसे पूछा था रिपेंटेंस का मतलब, ठीक है, तो रिपेंटेंस पे बात करेंगे अपन। आई गॉट इट, यू गॉट दैट रिपेंटेंस, अंडरस्टूड। आई गॉट इट। इवन इन बिटवीन इफ यू वांट आई विल एक्सप्लेन मच मोर। और क्या चाहिए? एक है द मेजर डिफरेंस बिटवीन वर्ल्डली सॉरो एंड गॉडली सॉरो। ओके, वर्ल्डली सॉरोज एंड वर्ल्डली सॉरो एंड गॉडली सॉरो। ओके, हाउ both cannot be intermixed, and is there any significance of worldly sorrow? Actually worldly sorrow का कोई significance है, it could lead a person to death. I would put it like this कि worldly sorrow will not bring a change in your heart, पहली चीज है ना। Just give me, let me take out the verse for this, then it will be better. It is mentioned in Corinthians में है ये इशू, वर्ल्डली सॉरोज एंड गॉडली सॉरो। गॉडली सॉरो को देखते हैं पहले, तो उससे समझ में आएगा। और गॉडली सॉरो इट इज इन फर्स्ट कोरिंथियंस और सेकंड, लेट मी टेक इट आउट। और एक मेरा ये भी पॉइंट है, once a person has achieved that salvation in form of repentance, then also will worldly sorrow be the part of his or her life? लाइफ में होगा कि नहीं वर्ल्डली सॉरो? हाँ। फाइन, एनीथिंग एल्स? शैल वी स्टार्ट अबाउट? और एक और चीज है कि when it is like कि once a salvation has been received by a believer, then what is the scope of turmoils in his or her life? There should not be any scope. There should not be any You scope. can't say that there is no scope. Scope all depends on you yourself, how you take these things. See, will power जो मैंने हमेशा बताया ना, will, you are बड़ा clearly सुनाई दे रहा है आपको? बिल्कुल। I am audible, clear? जी। Before I start, I will say a small word of prayer. Heavenly Father, we thank you, Father, that you could make us join with Jaya today, Lord, as she desires to learn from the Word of God about you more and more, that her grace and peace may multiply in her, Lord. Thank you, Father. We bless her that today we will have a wonderful intervention of the Holy Spirit revealing us the truth, Lord, and the truth will set us free in every area of our life, Lord. We bless her. We thank you for this time, Lord. May the Spirit of God lead us, guide us, and control us, Lord, that we give a right answer from the Word of God. In Jesus' name we pray. Amen. तो पहले चीज आपने जो पूछी है, वर्ल्डली सॉरो और गॉडली सॉरो। वर्ल्डली सॉरो तो यू आर सीइंग अ लॉट इन द वर्ल्ड, द वे हाउ थिंग्स आर गोइंग। उसमें कई लोगों के अंदर सवाल भी उठता है कि इतनी दुख तकलीफ उठा रहे हैं, तो व्हाई गॉड इज नॉट इंटरवीनिंग एंड सेटिंग देम राइट। ओके, ये आता है, कईयों के आता है, ये ऐसे क्यों छोड़ दिया परमेश्वर ने। अगेन दैट इज एन इश्यू ऑफ सॉवरेनिटी। Basically, God is sovereign, but God is not doing everything in the world. The worldly sorrows are due to satanic forces. Let's see if that first. Yeah, let's see that from the word. मैं आप word भी आपको दिखाते जाऊंगा स्क्रीन पे, you can see. अपन आराम से चलेंगे बेटा, जल्दी कुछ नहीं करेंगे, so that you can enjoy from the word also the truth. Note भी कर सके आप. I am taking you into Acts 10:38 पे लिखा हूँ. Let's see what is that. Acts 10:38. Yes. So ये क्या है इसमें? दिखाई दे रहा है बेटा आपको? नहीं, दिखाई नहीं दे रहा है। अब दिख रहा है? इसमें निकाल दो। नहीं, दिख रहा है अब? दिख रहा है? What you want? Should I tell it from Hindi or English? क्या बोलो? Anything. Okay. Now I'm reading it from 38. This is Acts 10:38 for your noting it down. ठीक है? यहाँ लिखा है how God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Ghost and with power.
ठीक है, who went about doing good and healing all that were oppressed of the devil, for God was with him. So the oppression, the turmoil, the problems which you are facing is not from God. It is from devil. Is it clear now? And that's why one of the major reason of God coming in the form of Jesus Christ coming in this world was to remove the oppression of the world, of the devil. Again, let's get into John. अच्छा लग रहा है? You are able to see the verse also. Now I am going to John 10:10. I am going. Now here it says, the thief, that is the devil, cometh not but for to steal and to kill and to destroy. So this is the plan of, this is not the plan of God. इसमें मेरे को हिंदी वाला बड़ा अच्छा लगता है, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल, समझ में आ गया, मतलब कुछ अच्छाई करने के लिए तो सवाल ही नहीं उठता, केवल चोरी करने और हत्या करने और नष्ट करने में वो आता है. सो there are other verses also where we can say, but this is very clear, the problems and the difficulties which we are facing in love. हम जो परेशानियां झेल रहे हैं वो किसके कारण से है? परमेश्वर की तरफ से नहीं है, शैतान के कारण से. So God is the root, not the root cause of all sorrows, right? So worldly sorrow जो बोलेंगे तो it is nothing else because it is coming from the world. Now let us see why only from the world. तो वर्ल्ड में जब हम देखते हैं, वापस वचन में ले आ रहा हूँ मैं आपको. Now I am taking you to 1 John 5 में चलेंगे हम. नहीं, हाँ, 1 John 5 and I come to 19, I believe. Let's wait and see. यहाँ बड़ा अच्छा लिखा है, 19 में लिखा है, हिंदी में बड़ा अच्छा लगता है मेरे को. हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है. किसवे? So in the world, the worldly things which we are seeing, it is under the grip of this demonic world. है ना? That is one of the reasons of all the sorrows in the world. मगर इन sorrows से आत्मिक लेवल में हम कोई ज्यादा लाभ नहीं ले सकते. कई लोग सोचते हैं ना कि अगर बहुत ज्यादा sorrow होगा तो लोग बाग will turn towards God. That is not true biblically. है ना? इसको हम देखते हैं. What is the sorrow which make you repent? That is the question ना. हमको ये जानना चाहिए कि ऐसा कौन सा sorrow है जो हमको परमेश्वर की ओर रिपेंट करवाता है. That is in 2 Corinthians 7 का 10 खोल रहा हूं मैं. 7:10 देखते हैं यहाँ पे. अब यहाँ आता है, इंग्लिश में बड़ा अच्छा लिखा है, फॉर गॉडली सॉरो. दिस इज नॉट द वर्ल्डली सॉरो, राइट? बेटा देख रहे हो? हेलो. फॉर गॉडली सॉरो वर्केथ रिपेंटेंस टू सैल्वेशन. दुनिया में रिलीजन में चलने वाले लोग सोचते हैं कि हम जब बहुत परेशानियों में होते हैं तब हम परमेश्वर की ओर मुड़ते हैं. हो सकता है ऐसा नहीं होगा. वर्ड सेज फॉर गॉडली सॉरो वर्केथ रिपेंटेंस टू सैल्वेशन, not to be repented of, but the sorrow of the world worketh death. दोनों चीज मिल गया ना, godly sorrow and worldly sorrow. हेलो बेटा, are you getting it? So worldly sorrow से लाइफ नहीं आती, it worketh to death only. But godly sorrow is what happened on the cross. That is godly sorrow. That means if salvation has overcome worldly sorrow. Worldly, I would not say worldly sorrow
टोटल ओवरकम वो भी मैं अभी आगे जाकर डिस्कस करते हैं. डोंट जंप इनटू दैट कंक्लूजन. ओके, आई विल टेल यू इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम. यहाँ समझने वाली बात यह है कि वर्ल्डली सॉरो में रहकर लोग उद्धार नहीं पालेंगे. बट व्हेन दे लुक अपॉन द गॉडली सॉरो, दैट इज द वर्क ऑफ द क्रॉस, दैट मेक्स यू रिपेंट टुवर्ड्स गॉड. तो इस रिपेंटेंस में बाबू, आपने जैसे हम उस दिन डिस्कस कर रहे थे, देयर आर बिलीवर्स जो कभी कभी अपने मार्ग से भटक जाते हैं. दे नो एवरीथिंग, दे नो ईच एंड एवरीथिंग, ईच एंड एवरी वर्ड ऑफ गॉड. देन इन फ्यूचर दे गोइंग टू डू बी, जैसे दोनों नाम में सवाल है, वर्ल्डली सॉरो भी करेंगे. अरे हम तो इतने बिलीवर्स थे. एक मिनट में इसको बंद करता हूँ सो दैट आई कैन कम डायरेक्टली फेस टू फेस. हाँ, अब बोल. अच्छे से अच्छा व्यक्ति जो अपने सही चाल चलन पे चल रहा है, इस जैसे वो कहते हैं ना, वी ऑल हैव wandered our ways like sheep, है ना. My first correction in your statement. आपको दुनिया में ऐसे लोग भी होंगे जो उद्धार नहीं पाए हैं बट संसार के स्टैंडर्ड से बहुत अच्छे चल रहे हैं. You will have umpteen of people. So सेवा भाव है, मदद कर रहे हैं, सब चीज कर रहे हैं. So just believing that can be a trap. माने लोग बिना उद्धार पाए हुए भी बहुत अच्छे बने रह सकते हैं. दिखाता हूं उसका वर्स एक्चुअली, then you will understand. सब चीज को अपन बिब्लिकली समझेंगे ना बेटा, तो बहुत अच्छी तरह हमारे को क्लियर होगा कि ऐसी चीजों में हम नहीं आ जाएं जिससे कि हम को This is Romans 6:18. 18 meaning एक मिनट रुकना बेटा. Still I'm missing the verse. का ही है उसमें. वर्ष होना चाहिए. ये दिस इज रोमन 6:20 देख रही हो. हेलो, यहाँ लिखा था फॉर व्हेन यू वर द सर्वेंट्स ऑफ सिन, ठीक है, yet you were free from righteousness means you were free to what? By quoting an example I'll tell you. एक लुटेरा है, चोरी कर रहा है, डाकू है, ठीक है. मैं कई बार देखते हो जैसे रॉबिनहुड था, चोरी करता था, सब कुछ करता था, मैं गरीबों की भी मदद करता था. गरीबों को मदद करना इज अ गुड थिंग. रास्ते में आप देख रहे हो कि है तो कोई बदमाश आदमी, मगर एकदम से कोई अंधा दिखा, उसको हाथ पकड़ा, उसको पार करवा दिया. दैट इज व्हाट बीइंग इन सिन यू कैन डू गुड थिंग्स. बल्कि बाइबल जब आप वर्स देखोगे तो आप अचंभे में रह जाओगे. लेट्स रीड इट आल्सो. लेट आई टेक यू इन आइज़ाया. इसमें कंफर्टेबल लगता है तुमको बाइबल में खोल के दिखा देता हूँ तो? हाँ, नहीं, इट्स ओके. मैं इसके लिए पूछा हूँ बेटा क्योंकि आगे भी मैं ऐसे बाइबल क्लासेस लोगों के साथ कर रहा हूँ ना, तो आई वांट द रिएक्शन कि इज इट कंफर्टेबल टू, है ना, अच्छा लगता है ना, बड़ा इजी रहता है, आप लोगों को ढूंढना भी हो, मेरे को भी फिर. बिल्कुल. This is Isaiah 64:6, ठीक है.
अब यहाँ क्या लिख रखा है, बट वी आर ऑल एज एन अनक्लीन थिंग, एंड ऑल, अब देखो अनक्लीन थिंग मीन्स वी आर नॉट राइचियस बाय दी सैल्वेशन, नहीं हुआ है, ठीक है ना। हिंदी में लिखा है हम तो सबके सब अशुद्ध मनुष्य के से हैं। देन ही सेज एंड ऑल, ऐसे लोग, all our righteousness are as filthy rags. That means being a sinner we can do all righteous things. अच्छे काम बहुत अच्छी तरह कर सकते हैं, पर तब भी क्या है, परमेश्वर के सामने वो अच्छे काम क्या है, filthy rags. And we all, this is one of the very sarcastic truth of the Bible कि आप पापी होकर भी बहुत अच्छे बने रह सकते, बहुत अच्छे काम कर सकते। That is what Bible says ना, that is your self righteousness. और ऐसे लोग फिर परमेश्वर की धार्मिकता को ग्रहण नहीं करते। ठीक है, गेटिंग द पॉइंट? जी, गेटिंग द पॉइंट। मेरा वो भी ये चीज है कि जैसे मैंने आपसे पूछा था कि इन चीजों के भी चलते अब जैसे अब कोई सोचे उद्धार पा लिया है, अरे उद्धार भी पा लिया है, बट देन उस समय जो हुआ वो सही नहीं था, हमें भी क्रिश्चियन ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। गलतियां हो रही भी वर्ल्डली, तो दोनों चीजें चली नहीं, दोनों चीज नहीं हुई। मैंने यू आर मेंशनिंग दैट बीइंग सेव्ड पर्सन वी विल नॉट सिन, ऐसा कुछ मानसिक है, ऐसा है नहीं। अब दिखाता हूं कहां तो पाप नहीं करेंगे और कहां पाप कर सकते हो, वो भी समझना बहुत जरूरी है, ठीक है, राइट। अब मैं आपको ले आ रहा हूं 1 जॉन में, जॉन 3:8। यहां बड़ा क्लियरली लिखा, 1 जॉन 3:8 है बेटा ये, ठीक है। यहां रखा है ही दैट कमिटेड सिन इज ऑफ द डेविल, फॉर द डेविल सिनथ फ्रॉम द बिगिनिंग, फॉर दिस पर्पस द सन ऑफ गॉड वाज मैनिफेस्टेड दैट ही माइट डिस्ट्रॉय द वर्क ऑफ द डेविल। तो पाप में से निकलने के लिए हम अपना कोई चीज करके नहीं कर सकते थे, यू नीडेड जीसस टू टेक यू आउट ऑफ सिन, ठीक है, पहली चीज। फिर लिखा था, अब 9th में एक बड़ा स्टेटमेंट लिखा है, whosoever is born of God doth not commit sin। हिंदी में बड़ा अच्छा लिखा, जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता, लिख दिया है ना। और फिर आगे लिख रखा है, फॉर हिज सीड रिमेनeth in him and he cannot sin because he is born of God। ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन का वर्स है लोगों के बीच में, जो स्पेशली बिलीवर्स के। बॉर्न ऑफ गॉड होने के बाद हम पाप नहीं करेंगे, सीधा सोचते हैं। What is born of God in you is not your soul and body, it is only the spirit which is born of God। पहली चीज ध्यान रख लें। यानी अगर वो अपनी स्पिरिट से ज्यादा अपनी बॉडी की भी सोच रहा है, that means when you will be led by the Spirit of God, then you will not commit sin. But the moment you are led by your body and soul, you will be very easily trapped in sin. देखो अब ये जो पत्री लिखी हुई है ना 1 जॉन है, ये एक लेटर है कंप्लीट, राइट फ्रॉम चैप्टर 1 टिल द लास्ट चैप्टर है। तो जॉन लिखा है। अब इसी लेटर में अपन शुरू में देखते हैं, वहां एक चीज बड़ी, अभी यहां तो लिख रखा है इसने जॉन ने कि ही कैनॉट सिन, है ना, देखा ना अपन ने, हेलो यू गॉट इट, वहां देखा हमने कि यहाँ यू कैनॉट सिन। अब अपन जानते हैं 1 जॉन 1 में यहां लिख रखा है, नीचे आते हैं हम, यहां बड़ा अजीब लिखता है, यहां जॉन से रहा है, इफ 8 में 1 जॉन 1:8 में, इफ वी से दैट वी हैव नो सिन वी डिसीव आवरसेल्व्स एंड द ट्रूथ इज नॉट इन अस। जॉन व्हाट इज दिस? एट वन प्लेस यू आर सेइंग जो बॉर्न हो गया
वो सिन करेगा ही नहीं, उसमें सिन हो ही नहीं सकता। बट यहाँ लिख रखा है इफ यू से यू हैव नो सिन वी डिसीव आवरसेल्व्स एंड द ट्रूथ इज नॉट इन। फिर आगे 10 में और बड़ा चीज लिख देता है, इफ वी से दैट वी हैव नॉट सिन्ड वी मेक हिम अ लायर एंड हिज वर्ड इज नॉट इन अस। हो गया ना कच्चा खाने वाली बात। हेलो, जी मैम। मगर क्या है ये जो बता रहा है, दिस इज नॉट, दिस इज व्हाट इज सेइंग दैट इन योर सोल एंड बॉडी even after getting born again you can sin। अब देखो आगे पढ़ते हैं, हम जाते हैं 2nd चैप्टर में, उससे और क्लियर होगा आपको। 1 जॉन चैप्टर 2:1 पढ़ रहा हूं, ये कंटिन्यूअस है लेटर, ठीक है ना। अब लिखता है यहाँ पे जॉन, माई लिटिल चिल्ड्रन, दैट मीन्स दे आर ऑल बॉर्न अगेन चाइल्ड ऑफ गॉड। जब भी ऐसे बोल सकता है वो, है ना। माय लिटिल चिल्ड्रन में बॉर्न अगेन कहाँ स्पेसिफाई हो रहा है? नहीं, और कौन हो सकता है, सबके लिए लिख रहा है। चिट्ठी पूरी चर्च के लिए लिख रहा है, तो बच्चों के लिए थोड़ी लिख रहा है चिट्ठी। Are you understanding? The letter has been written to the church. Now he says, my little children, these things write I unto you that ye sin not। अब ये चीज इसके लिए बता रहा है, समझा रहा है, ताकि आप लोग पाप ना करो, ठीक है। दैट मीन्स यू कैन, आगे आएगा, एंड इफ एनी मैन सिन, आगे ना, बॉर्न अगेन चाइल्ड ऑफ गॉड है, चर्च है, चर्च को चिट्ठी लिखी गई है, जो कि प्रभु को जानते हैं, सब करते हैं। और फिर उसमें लिखा है, एंड इफ एनी मैन सिन वी हैव एन एडवोकेट विद द फादर जीसस क्राइस्ट दिस राइचियस। हमारे को पाप से बचाने वाला कौन है? यीशु, क्योंकि उसने उस पाप की भी कीमत चुका दी है, फॉरगिवनेस दे दिया है। सो यू हैव अ रेमेडी फॉर योर सिन। मगर इसका ये मतलब नहीं है कि हम पाप करते रहे। एक ही चिट्ठी है जिसमें दोनों, तो यहाँ पे जब वो लिख रहा है दैट इज द सिन व्हिच यू कैन कमिट इन योर सोल एंड बॉडी। अब बाइबल में एक जगह और जब हम चलेंगे, और इसको आगे समझाया भी है, and he is the propitiation for our sins, and not for ours only but also for the sins of the whole world, because God has dealt the sins of the world. The day Jesus Christ hung on the cross and gave the life, all the sins of the world has been forgiven, but you have to appropriate it by believing on it. जो नहीं करता है उसको ये लाभ नहीं मिलता है। आई बात समझ में? ठीक है। अब बात चलते हैं, एक और जगह से दिखाता हूं जिससे समझ में और आएगा कि पाप हम कैसे कर सकते हैं बिलीवर होने के बाद भी। एफिशियंस 4 यहां से मैं इसके लिए पढ़ा रहा हूं 24 से। तो पहले तो समझ में आना चाहिए कि स्पिरिट में क्या कर रहा है परमेश्वर, एंड दैट ही पुट ऑन द न्यू मैन। बोलो बोलो। इट इज फॉर स्पिरिट, है ना? नहीं, मैं पूरा समझा दूंगा, स्पिरिट सोल बॉडी सभी आएगा इसमें। तो यहाँ जब बता रहा है 24 में, एंड दैट यू पुट ऑन द न्यू मैन विच आफ्टर गॉड इज क्रिएटेड इन राइचियसनेस एंड ट्रू होलीनेस। ये देखो, तुमने जैसे कल मेरे को वर्स भेजा ना 2 Corinthians 5:17 कि रिन्यूअल ऑफ द स्पिरिट। सी योर स्पिरिट इज नॉट टू बी रिन्यूड। ये रिपेयर वाला काम नहीं है स्पिरिट में, इट हैज टू बी क्रिएटेड न्यू। तो 2 Corinthians 5:17 में भी है, वन हु इज इन क्राइस्ट ही इज अ न्यू क्रीचर, ऑल ओल्ड थिंग्स हैव गॉन एंड एवरीथिंग हैज बिकम न्यू। That is in your spirit. So those old things are in the spirit, है ना? मैंने आपकी जो स्पिरिट थी, एक सिंफुल स्पिरिट थी, separated from God, that has been removed. Now you have a spirit of God with your spirit in your body. That is the new creation. Irrespective of how the world is seeing that person, still. Well, forget about the world. It is how you and God is seeing that man.
each other. So God now sees a spirit which is alike to the spirit of Christ, because Christ's spirit, when it comes in you, then you are made one in the spirit. ऐसा समझ रहे? हाँ, अब यहाँ जब ये लिखा ना, तो और यहाँ पे God is created in righteousness and true holiness. That means there is a false holiness also and a false righteousness. फॉल्स होलीनेस वो जो लोग अपने आप को होली बनाने में लगे रहते हैं, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, ये कहते हैं, दैट इज फॉल्स होलीनेस. एंड फॉल्स राइचियसनेस इज योर सेल्फ राइचियसनेस, क्योंकि दे ऑल आर बेस्ड ऑन व्हाट दे डू. In fact, what has to happen is that there is a creation to be done in your spirit. Now, when he is saying created in righteousness and true holiness, that is what he did in Genesis. Let us make man in our own image. ठीक है ना, जो जेनेसिस में है ना, जेनेसिस में let us make man in our own image. That was in the image of God. That is, God is a spirit. God created us as a spirit being, and in His image, that means in true holiness and righteousness. But that was lost due to disobedience of Adam. That is in Romans 5:19. Due to one man's disobedience, many were made sinners. That is in Romans 5:19. But मामू, कभी-कभी मुझे लगता है हालांकि you cannot add or omit anything from the Bible. What was that sin actually? हाँ, बहुत अच्छा सवाल. Sin was What not. was that sin? सिन, वो उस टाइम का सिन और आज का सिन सब बराबर ही है, सारा सिन. द सिन वॉज दे डोंट. हाँ, बता रहा हूँ, एक मिनट लो, उसको भी वर्ष से दिखाता हूँ. बिल्कुल, मैं देखो, मैं इसके लिए आप लोगों को वर्सेस इसके लिए दिखाना बहुत जरूरी है, नहीं तो हम लोग क्या मैन मेड थॉट्स में जाते हैं हम लोग ज्यादातर. जॉन 16 खोल रहा हूँ मैं. एक मिनट मेरी बैटरी का लगाना पड़ेगा. जस्ट गिव मी अ मिनट. ओके, जॉन 16:7. अच्छा सेटअप लग रहा है बाइबल क्लास के लिए. बहुत अच्छा, बहुत अच्छा. यू कैन अंडरस्टैंड. अब यहाँ लिख रखा है 16. दिस इज जॉन 16:7. Nevertheless, I tell you the truth, it is expedient for you that I go away. For if I go not away, the Comforter will not come unto you. But if I depart, I will send him unto you. Then he says, and when he is come, he will reprove the world of sin. देखा? Sins नहीं लिख रखा. Reprove the world of sin and of righteousness and of judgment. The common preaching available in the church is the Holy Spirit comes and makes you know what all sins you are doing. And then he says, because you are unrighteous, so you will be judged. ये preaching है इस वर्ष से चर्चों में जो बताया जाता है. That is not right, because the next verses explain कैसे क्या हो रहा है. अब बोलता है of sin, because they believe not on me. So the primary sin of Adam and Eve was they didn't believe what God said. The day you will eat the fruit of tree of knowledge, you will surely die. They didn't believe that. आज भी आपका जो भी पाप वो ये है, क्या है, जब आप वचन जो कह रहा है उसको नहीं मान के अपने विचार, अपनी सोच, वर्ल्ड की सोच को मानते रहते हो, you will be in sin only. अब समझ में आता है ग्रेविटी, वचन को जानना कितना जरूरी है. Of sin because they believe. Being human, ये तो natural tendency रहती ही रहेगी माँ. एक मिनट, मेरे को जरा सा क्या डायरेक्ट कन्वर्सेशन में अच्छा लगता है. हाँ बोलो, अब क्या बोल रही हो? Being humans, as you said, this turmoil will remain. Being humans, it's not. Being humans, this turmoil रहेगा. चलता रहेगा. No,
Now you understand this statement, what I am saying. See, I am, as a human, ये सारी प्रॉब्लम रहेगी आपके अंदर. But the day you are born again, you are a human, but having a supernatural God in you. Okay. Got it? Now you have to live by the power of the supernatural, not your own power, your own understanding. That is in ये प्रॉब्लम्स ये है ना, जब वर्ल्डली में जब चलते आए होते हैं ना अपन, तो हमको ये लगता है अरे ये तो ऐसे ही होगा, ऐसे ही चलेगा, पाप करते रहेंगे. ये सब गलत सोच है, बिब्लिकल नहीं है ये सब. Because when you have received Christ in you, something has changed. A supernatural God has come in inside you. ये Proverbs 3 खोला है मैंने और मैं पढ़ रहा हूँ. My son, forget not my law, but let thine heart keep my commandments. सही बात में एडम के और ईव के साथ क्या हुआ? They forget what God said. Are you getting it? Now क्या होता है? जब रखोगे, फॉर लेंथ ऑफ डेज एंड लॉन्ग लाइफ एंड पीस शैल दे ऐड टू दी. पहली चीज. फिर क्या लिख रखा है? लेट नॉट मर्सी एंड ट्रूथ फॉरसेक दी, बाइंड देम अबाउट thy neck, write them upon the table of thine heart. And then he says, so shalt thou find favor and good understanding in the sight of God and man. Fifth is very good. Trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. तो अभी जो आप बोल रहे हो ना, ये that is a worldly understanding, because all these years we have lived in that way. अन्य लोग यही बोलते हैं, हम तो पापी हैं, हम तो इंसान हैं, हम तो जैसी करते रहेंगे. ऐसा नहीं है. The moment you have received Christ, then he says in Philippians, I can do all things through the strength of Jesus. लिखा है ना, I can do all things through the strength of Jesus, not my strength. जी. Old Testament में लिखा हुआ है, not by our power, not by our might, but by the Spirit of the Lord. Now, when you are born again, you have received the Spirit of God. So now you are not an ordinary man. You are supernatural. In fact, soul और body में तो हो सकता नहीं भी, but your spirit is completely pure without any sin. Sin cannot enter it. 33% of your makeup is completely pure, and वो रहेगा हमेशा आगे भी. उसमें कोई ऐब आ ही नहीं सकता. अब है आपका कि जो आपके स्पिरिट में आ गया है, तो वर्ड आ गया, सब आ गया. अब नाउ हाउ मच यू रिन्यू योर माइंड विद द वर्ड ऑफ गॉड, दैट मच पावर यू विल सी मैनिफेस्टेड इन योर बॉडी. इसके लिए वर्ड्स दिखाता हूं. वर्ड्स सारे नोट कर लेना बेटा. ये कर लिया. Now I am taking you into पत्रियों में 3 John 1. ये 1 John थर्ड जॉन पत्रियां. 3 John एक ही चैप्टर, उसका 2nd वर्स पढ़ रहा हूं मैं. ये हिंदी में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहेगा, वो क्लियर भी कर दूंगा. यहां ये बोल रहा है, बिलवड आई विश अबव ऑल थिंग्स दैट thou may prosper and be in health even as thy soul prospers. स्पिरिट के लिए कुछ नहीं बोल रहा है इसमें, 2 चीज के लिए बोल रहा है. जैसे जैसे प्राण प्रॉस्पर करेंगे, बल्कि हिंदी में आत्मिक लिख दिया इन्होंने. आत्मिक उन्नति नहीं है ये. आत्मिक उन्नति इन द सेंस एज अ होल मैन. आपकी आत्मिक उन्नति कब होती है? जब आपका सोल प्रॉस्पर करता है और बॉडी भी प्रॉस्पर कर जाती है ना.
आत्मा तो एक वन शॉट, द डे यू एक्सेप्ट जीसस क्राइस्ट दैट हैज बिकम होल कंप्लीट 20 क्या बोलते हैं 24 कैरेट गोल्ड होता है ना, प्योरेस्ट फॉर्म, ऐसा हो जाता है। पर यहाँ लिखा है दैट thou must prosper and be in health even as thy soul prospers. So how much you will, let me put the camera, how much you will renew your mind, that is your soul, ठीक है, that much prosperity you will have in the body. कई बार लोग हील क्यों नहीं हो पाते? Because they have not yet prospered in the soul. वचन से अभी तक नए नहीं हुए एरियाज में, सारे एरिया में नहीं हुए, कुछ नहीं। सो इट इज अ प्रोसेस। यानी अगर हम जी हाँ बोले, यानी आपने जब अपने उसमें जूडस का एग्जांपल दिया था, तो वही है कि he didn't repent actually, वो तो वर्ल्डली सॉरो की वजह से ही वो वर्ल्डली सॉरो दिखाया उसने, उसको वर्ल्डली सॉरो यीशु मसीह के लिए आया, यार ये मर जाएगा मेरे घर, वो भी नहीं है, वर्ल्डली सॉरो तो आया ही नहीं बेसिकली। उसने ये नहीं सोचा कि he could have been saved, वो ऑलरेडी सेव, उसने नहीं सोचा, नहीं आया, हो जाता अगर थोड़ा सा रुक जाता तो द डे यू, हाँ माफी उसको भी थी, सबके लिए है माफी, सबके लिए। ये एक्चुअली में क्या है, थियोलॉजिकल लोग बोलते नहीं जूडस को तो पर्पस ही था, पर परमेश्वर ने यीशु मसीह ने तो कैसे क्रूस पे चढ़ता जब तक वो नहीं पकड़वाता था, ऐसा नहीं है। एक्चुअली में जीसस इवन ऑन द क्रॉस दे कुड नॉट किल हिम, दे डिड नॉट मेक जीसस डाई, ही लेफ्ट हिज प्राण उसने अपने खुद त्यागे, जब मरा वो कोई नहीं मार सकता था यीशु मसीह। The word, if you read the whole word, you will find it. वहाँ क्रूस पे भी उसने I surrender my spirit unto your hands, कोई नहीं मार सकता था यीशु मसीह। जॉन में लिखा का I lay down my life for the sheep and take back। तो ये स्टेटमेंट्स है जीसस के, उसके हिसाब से जीसस को कोई मार नहीं सकता। और इनफैक्ट अगर इनको पता पड़ जाता ना, जो मारने वालों को, तो मारते ही नहीं उसको, वो भी दिखाता हूं। Very interesting. You read when the word is made clear in your life. 1 Corinthians में चलते हैं, First Corinthians chapter 2। नहीं सॉरी, गलत खोला मैंने। 1 Corinthians का chapter 2 को 1 Corinthians chapter 2 का 6 या 7 में होना चाहिए। Let us read. ये यहाँ लिखा है, यहाँ this is 1 Corinthians chapter 2 7 and 8 पढ़ रहे हैं अपन। But we speak the wisdom of God in a mystery, even the hidden wisdom which God ordained before the world unto our glory. Then he says, which none of the princes of this world knew। थे ना राजा, फेरिसीज और ये सब लगे हुए थे ना, which none of the princes of this world knew, for had they known it, they would have not crucified the Lord of glory। देखा वचन क्या बोल रहा है? Exactly. And even from the Bible, अगर शैतान को ये पता पड़ जाता कि यीशु मसीह के क्रूसिफिकेशन से मैं हार जाऊंगा, तो वो मारता ही नहीं, मरने के लिए भिजवाता ही नहीं उसको। तब कि मैंने बताया वो वहां पे भी वो नहीं मार सका, वो तो परमेश्वर। बट क्रूसिफिक्शन का जब स्टेज को लाने के लिए जिम्मेदार कौन थे? ऑल द फैरिसीज एंड वो जो बोलते रहे ना एलिगेशन। अब नाउ यू सी द पावर। जो चीज ढांप के रखी शैतान को, वो ये है कि यीशु मसीह का हमारे पापों को लेकर मरना और तीसरे दिन जी उठना। द गॉस्पेल वाज हिडन फ्रॉम सेटन, but now he tries to hide the gospel from people। सबसे बड़ा धोखा उसी से तो खाया उसने। उसको अगर थोड़ा सा भी अंदेशा हो जाता कि यीशु मसीह के मरने के बाद ये तीसरे दिन जी उठेगा, तो सारा लीगैलिटी, द राइचियसनेस ऑफ गॉड व्हिच इज गोइंग टू गिव अस एंड ऑल, सब खत्म हो जाएगा। तो मारता ही नहीं उसको। ये है, these are the real spiritual truths we should understand this, why Jesus' death and resurrection is so important।
सोच लो, शैतान मारता ही नहीं, आप और हम बचे नहीं पाते। और बाइबल में भी जो कुछ एग्जाम्पल्स हैं अपने, जैसे एग्जाम्पल ऑफ डेविड इज देयर। क्या है? एक्चुअली वैसी क्वेश्चन मैंने कई बार पूछ चुकी हूँ मंगी से, यश जैसे, बट देन आपसे आपका भी पर्सपेक्टिव जानना चाहती हूँ। पहली चीज, I मेरा think पर्सपेक्टिव he मत was- जानना, वर्ल्ड का पर्सपेक्टिव जानना। नहीं, आपका पर्सपेक्टिव, इट्स नॉट वर्ल्ड, आई कैन नॉट चेंज, बट he committed the sin intentionally, deliberately, डेविड ना, knowing that he is already anointed, उसके पास सब कुछ था। Was that destined? नो, दैट वाज हिज Then why? ओन विल। अब देखो, उससे ज्यादा बढ़कर बेसिकली बिब्लिकली मैरिज तो एक ही करना है, ये स्टैंड करता है आज भी, उस टाइम भी माँ बाप स्टैंड करता है। और पुराने नियम में वो जब उसने जब ये पाप करा ना, तो परमेश्वर ने बोला, अरे मेरे से बोला आता मैं तेरे को और अलाउ कर देता लोगों से शादी करने के लिए। ये तक देयर इज रिटन इन द वर्ड ऑफ गॉड व्हेन यू रीड दैट। जब सैमुअल ने आकर उसको समझाया ना, तो लिख रखा है वहां, व्हाट द इशू इज, गॉड के सामने पाप इज नॉट अ बिग इशू, बिकॉज गॉड कैन डील द सिन। पहला सिन भी डील कर चुका है एडम का भी, आज भी हमारे जो पाप है उनको डील कर चुका। गॉड इज इंटरेस्टेड इन योर ओन विल टू चूज द राइचियसनेस एंड द ग्रेस ऑफ गॉड। डेविड अंडरस्टूड इट एंड ही प्रेज इन साम्स, लॉर्ड मैंने सब पाप करा है, Fear my transgressions and iniquity. and do not remove the Holy Spirit, because the problem of the Old Testament was the Holy Spirit could be removed. That is the actual repentant heart of David. वर्ल्ड की वजह से नहीं, कि लोग क्या सोचेंगे। अरे वैसे मैं एक चीज बताओ, ये बाइबल लिखते वक्त चाहते तो दाऊद का ये पाप को लिखते ही नहीं, छुपाया जा सकता था बड़े आसानी से, बट दिस इज द ब्यूटी ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड, सारे ट्रुथ को एक्सप्रेस करता है, बिकॉज गॉड इज नॉट वरीड विद दीस टाइप्स ऑफ थिंग्स। सारे पुराने नियम के लोग कौन था जो, और वो छोड़ो, नए नियम में आकर कौन सही सिद्ध होकर चल लिया। यूहन्ना को जब आप पढ़ोगे रेवलेशन में, बाइबल में लिखा है, डू नॉट बाउ डाउन बिफोर एनीबॉडी एल्स। स्वर्गदूत के सामने यूहन्ना, और स्पिरिट में है वो पूरा, जब रेवलेशन लिख रहा है तब झुक रहा है घर पे। फिर 3 चैप्टर बाद फिर वापिस जाके जब बोल देता है स्वर्गदूत, अरे नहीं मेरे को नहीं करना है, दंडवत नहीं करना है मेरे को, फिर वापिस कर रहा है। क्या करोगे अब जॉन को? यू नो ऑल दैट करा भी है तो सिन को माफ कर चुका है यीशु मसीह। दिस इज द ग्रेशियस गॉड वी हैव, and why he could do, just because that is a righteous deed, because all that sin has been punished on Jesus Christ. इसके लिए सेटन उंगली उठाकर कुछ बोल नहीं सकता, गॉड को चैलेंज नहीं कर सकता, you are not a righteous judge, because he did it in a righteous way. The work of Jesus Christ on the cross is the plan of God to deal the sin of this world. ये सब चीज जब कॉम्प्रीहेंड करोगे ना, ऑटोमेटिकली देन यू विल बिकम सो राइचियसनेस कॉन्शियस कि आप पाप करोगे। But then it comes to my mind, sometimes Samson was chosen again against the ओल्ड Philistines. टेस्टामेंट के तो जितने भी चोजन थे सभी ऐसी गलत कर चुके हैं, खाली सैमसन Actually, दाऊद कर चुका है, सॉलोमन, इवन सॉल वाज आल्सो चोजन ओनली, है ना, मूसा कर चुका है, मूसा ने मर्डर करा, मूसा ने so is there any hidden secret behind these things? कि the ones हिडन who were सीक्रेट chosen have- नहीं, चोजन होने के बाद इसके लिए यही क्लियर हो जाता है कि चोजन होने के बाद ही पाप कर सकते हो, तो आप भी बिलीवर होने के बाद देह में चल के पाप कर सकते हो। आई एम गिविंग अ वेरी क्लियर कट आंसर। व्हाई पता, मूसा को ओल्ड टेस्टामेंट में लिख रखा था,
प्रोफेसी थी कि अब्राहम के थ्रू, और ये जब इजराइलाइट्स को 300 साल बाद बंधनों में से छुड़ा लाएगा, है ना? प्रोफेसी लिख रखी जेनेसिस में है ये. बट दे केम आउट आफ्टर 330 years. Why? Due to Moses. जब आप न्यू टेस्टामेंट में आकर पढ़ोगे तो वहां लिखा का मूसा को पता था कि मेरे को परमेश्वर ने चुन रखा है, मगर फिर परमेश्वर के अनुसार नहीं चला वो. फिर वो अपने आप में चला, धैर्य में चला. जाकर 2 जन लड़ाई कर रहे थे, इजराइलाइट्स और ये जो आपके अन्य जाति वाले, तो उसने वो मिस्र वाले को मार दिया. फिर वापस जब थोड़े दिन बाद 2 इजराइलाइट्स लड़ रहे थे तो वो गया, तो उन दोनों ने, अच्छा तू हम में से किसी को मारेगा जैसे तूने उसको मार दिया, तब भागा. Are you getting it? So that is because he knew that God has chosen him, but he didn't know how he will work. God के प्लान के अनुसार नहीं चला वो, अपने मर्जी से चला कि मैं बचा लूंगा सबको. So that also today it can happen with you, and due to this you can delay the plan of God as Moses did. नहीं तो 300 साल में निकल आता. Same way, take the example of Elijah and Elisha. एलाइजा को परमेश्वर ने अनॉइंट करके 2 राजाओं को अनॉइंट करने के लिए बोला और एलिशा को अनॉइंट करने के लिए बोला. एलाइजा डिडंट अनॉइंट द 2 किंग्स, जिसके कारण करीब 15 या 20 साल तक इजराइलाइट्स अन्य जाति के राजाओं के अधीन रहे. Suffered. Then what God did, He took the anointing of Elijah, poured it on Elisha, and Elisha anointed those 2 kings. And then Israelites were set free. So this is one more lesson we should understand from the word, that even after you have been chosen or born again, if you have not yet made the will to be submitted to the will of God, you can delay the plans of God in your life. You can invite sorrows in your life. All these things can happen the day you are not led by the Spirit. I have answers मिल रहे तुमको? सौरों का भी जैसे पूछ रहे हो. So will power को overrule नहीं कर. 100% submission and will power naturally अपनी है. Will power को कभी भी परमेश्वर overrule नहीं करेगा. Elijah didn't do it. Elijah didn't do it. Then he did. Will power, but then will power is human. No. Human being. No, it is basically a quality of God. God has a will. God has also given you a will. The free will which He has given you has never overruled it. You have to submit it by your proper understanding. And वो अगर आप वर्ड से रिन्यूड हो जाओगे, ये सारे ट्रुथ समझ जाओगे. बहुत, मैं आज जितनी ट्रुथ्स बता रहा हूँ ये कहाँ सिखा रहे हैं बाइबल की चर्चों में हमें? That you can delay the plans of God, you can do all these things. कहाँ बता रहे हैं? पर आप जैसे जान जाओगे, then you can be used by God very easily. एक बार विल पावर का आप मुझे लिखवाइएगा थोड़ा ब्रीफ में. विल पावर. Will power is nothing. That is your decision. Can't be. Will power will never be overruled by God. आप पाप करके जन्म में जा भी रहे हो, परमेश्वर साथ साथ जाएगा, लोगों को भेजेगा, सब चीज बताएगा, मगर आपने अगर नहीं चुना तो ही कैनॉट सेव. अगर कर सकता तो हर कोई बच जाता ना. फिर तो क्या आदम और हवा कोई कुछ नहीं करते. Then we would be a robot. अब now why the willpower is needed? Because without free will we will never be able to express love. लव की जो क्वालिटी है, इट कम्स आउट ऑफ फ्री विल. विदाउट द फ्री विल यू कैन नॉट एक्सप्रेस लव. ये है कारण. और लव पहली चीज थी, परमेश्वर स्वयं लव. एंड व्हाई लव इज इन गॉड? बिकॉज गॉड इज अ ट्राइयून गॉड. ही इज गॉड द फादर, गॉड द सन एंड गॉड द होली स्पिरिट. लव की एक्सप्रेसिबिलिटी जब तक 2 या 2 से ज्यादा लोग नहीं हो और फ्री विल नहीं हो तो कर नहीं सकते. That's why God is love, because He is a triune person over there.
Enjoying it? ऐसे में एक चीज होती है कि जैसे मम्मी से मेरा डिस्कशन होता है तो वो यही कहती है कि सी ऑलरेडी गॉड नोस कि कौन इंसान कहाँ तक जाएगा, कैसे जाएगा, और उन परिस्थितियों से भी अगर खुदा को निकालना होता है तो वो निकाले। I will not नहीं। agree like blindly like this. परिस्थिति से निकालने के लिए लोगों को भेज देगा, एडवाइजर भेज देगा, सब चीज दे देगा, वचन दे रखा है, उद्धार दे रखा है, सब है, पर फिर भी आप चुनो कि नहीं निकलना है, गॉड विल नॉट, सॉरी, दैट्स नॉट बिब्लिकली राइट कंप्लीटली। खुदा हेल्प करता है, इज अ हेल्पर, द होली स्पिरिट इज सेंट टू यू, ही विल ब्रिंग इट। सी व्हाई आई एम सेइंग, बिकॉज उद्धार के लिए परमेश्वर ने जब हमको दिया है, इसको समझते भी हैं। It is in Philippians. Are you now convinced what I am saying is biblical? बताता हूँ मैं सब चीजें तुम्हें, है ना? देखो यहाँ लिख रखा है Philippians 2 का 12 है, आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये 2 का ही 12 होगा, हाँ 2 का 12 है। यहाँ लिखा है wherefore my beloved, as you have always obeyed, not as in my presence only, but now how much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling. इसमें तो ऐसा लग रहा है जैसे हमको, he is not saying that salvation तो आपके अंदर आ गया, आत्मा में आ गया, now that has to be worked out in your soul and body. कैसे करता है, उसके लिए व्यवस्था भी क्या दी है? For it is God which worketh in you both to will and to do his good pleasure. परमेश्वर आपके अंदर देता है इच्छा शक्ति कि आप करो, मगर तब भी आप फ्री विल को उसको एक्सेप्ट नहीं करो, गॉड कैन नॉट डू एनीथिंग। राइट। और हाँ, और अभी जैसे आप कहते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि जो लोगों को मिलता है कि भाई ग्रेस हमें लाइसेंस मिल गया टू कमिट सिन, इट्स नेवर अ लाइसेंस, बट देन In fact, I should give this statement before. Without grace भी लाइसेंस टू सिन कर ही रहे हो। ग्रेस का इसमें क्या लेना देना? बट मामू जो ट्रू सेंस में समझ जाएंगे ना ये चीज, हाँ तो मैं यही तो बता रहा हूँ, इफ यू अंडरस्टैंड द ग्रेस, रखना नहीं होता है। इट्स लाइक अभी मेरी सिचुएशन क्या चल रही है, लेट मी शेयर इट विद यू इफ यू डोंट माइंड। नहीं, अभी आई एम इन द प्रोसेस ऑफ रिसीविंग, आई हैव ऑलरेडी रिसीव्ड, आई फील इट, चेंज डोंट फील इट, बिलीव इट। देखो स्पिरिचुअल चीजों को फील नहीं कर सकते आप, बी वेरी क्लियर। स्पिरिचुअल चीजें फील नहीं होती, यू हैव टू बिलीव व्हाट द वर्ड सेज। I have felt it in your prayers which you have done for me, means that peace, that freeness of, you know, everything. Because the spiritual bondages have broken up. अभी थोड़ा सा एक warfare sort of चीज चल रही है, in the manner that वही मैंने जो आपसे क्वेश्चन किया था, worldly sorrow, godly sorrow। कुछ चीजें पहले पता नहीं थी, frankly speaking, इतना बहुत एक्सपोजर मुझे था नहीं, अब वो एक्सपोजर आया। सो समटाइम्स आई फील माइट बी एक तरह से पिछले समय में ऐसा तो नहीं कि मैंने अपनी विल पावर का इस्तेमाल करके कुछ ऐसा करा और जिसने गॉड को हर्ट कर। Yes, ऐसा आता है ना? बिल्कुल करा है और करा भी है, मान के चलो ये। By your own will you would have not chosen the right thing and अभी 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 मेरे मन में दोनों चीजें, वर्ल्डली सॉरो, गॉडली सॉरो। नहीं, basically what you are saying is you are under condemnation कि मैंने ऐसा ऐसा कर रखा है। Now you have to renew it from the word of God. देखते हो इसके लिए क्या है condemnation। ये सबको रहता है कंडेमनेशन, शैतान कभी भी डाल देता है हमारे जीवन में, मगर वर्ड से हमको समझना चाहिए कि हमारे लिए क्या चीज कर दी है प्रभु ने। रोमन्स 8:1 खुलवा रहा हूं, क्या लिख रखा है। इनफैक्ट इसको जब रोमन्स 7 को पढ़ोगे ना, रोमन्स 7 पूरा पढ़ना तो, और फिर इस पे आना 8:1 पे। अब यहाँ कह रहा है देयर इज, वो बल्कि पॉल कह रहा है what I want to do I do not do, what I do not want to do I do, who will take me out of this terrible mess।
है ना 1:7 में ये रोमन्स 7 में ये खत्म होता है इस तरह से। लो खोल के दिखाता हूँ मैं, रोमन्स 7 लास्ट वर्सेस। ये डिलेमा उसके पास यहाँ लिखा है ना, ये सब करता है। बट आई सी अनदर लॉ इन माई मेंबर्स वॉरिंग अगेंस्ट द लॉ ऑफ माई माइंड एंड ब्रिंगिंग मी इनटू कैप्टिविटी टू द लॉ ऑफ सिन विच इज इन माई मेंबर्स। ओ wretched man that I am, who shall deliver me from the body of this dead? And then he says, I thank God through Jesus Christ our Lord. So then with the mind I myself serve the law of God, but with the flesh the law of sin. You conclude कर रहा है 7 में. And then when he understood only Jesus can save me from this thing, and then what he says in 8:1 पढ़ते हैं देखो, और ये तुमको कन्फेस करना चाहिए. There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. Clear? ये तुम्हारा जो कंडेमनेशन है ये पास्ट सिन के कारण आता है, ठीक है ना? God has already forgotten all your sin. He has thrown in your sin from east to west. पता है एक चीज मैंने एक बार पूछा था, नॉर्थ टू साउथ क्यों नहीं बोला आपने इसको? You know how scientific is that statement? आप अगर ग्लोब में फ्लाइट लोगे जैसे इंडिया से टूवर्ड्स ईस्ट है, तो ईस्ट ही ईस्ट आएगा, वेस्ट कभी नहीं आएगा. बट व्हेन यू टेक फ्रॉम इंडिया टूवर्ड्स नॉर्थ पोल, यू विल गो क्रॉस ओवर एंड यू विल रीच साउथ पोल. मगर आप यूं चलोगे तो कभी भी वेस्ट नहीं पहुंचोगे, यू विल बी ऑलवेज ऑन द ईस्ट. एंड दैट्स व्हाई दिस बाइबल इज सो साइंटिफिकली ट्रू. आई टेल यू, मेरे को इतना अच्छा लगता है ये सब चीजें जब मैंने सीखा. कितना पावरफुल है गॉड टू एक्सप्रेस द ट्रूथ. पाप को ऐसे हटाया जैसे ईस्ट टू वेस्ट. वो याद भी नहीं रखता है, पर हम लोग याद रखते हैं. Our memories are so, अभी तक याद रखते हैं, जबकि बाइबल बोल रहा है there is no condemnation. एक देखो द न्यू टेस्टमेंट का जो वाचा है ना, उसका कंडीशन देखते हैं अपन, तब समझ में आएगा. अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है? बहुत अच्छा. You missed so many things I was expecting to. Anyhow, but it is good that we could join today. Hebrews 8. ये Hebrews 8 में है. 8 से पढ़ रहा हूं मैं. For finding fault with them, he said, Behold, the days come, said the Lord, when I will make a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah. माने हम लोग के लिए भी है ये. अब ये क्या है? Not according to the covenant that I made with their forefathers in the day when I took them to the hand to lead them out of the land of Egypt, because they continued not in my covenant, and I regarded them not, saith the Lord. For this is the covenant that I will make with the house of Israel after those days, saith the Lord. I will put my laws into their mind and write them in their hearts, and I will be to them a God, and they shall be to me a people. ये तो इजराइल के हिसाब से. And they shall not teach every man his neighbor and every man his brother, saying, Know the Lord, for all shall know me from the least to the greatest. अब क्या आगे? For I will be merciful to their unrighteousness, and their sins and their iniquities will I remember no more. और हम अभी भी रिमेंबर कर रहे हैं. See what God is not remembering. ये कंडीशन है न्यू टेस्टामेंट की, न्यू कवेनेंट की. God will not remember with respect to us, but we as people will remember with respect to other people. हैं? नहीं समझ लो. When God has forgotten and forgiven, अब कौन सा सिन रह गया आपके ऊपर? पागल हो अगर आप being human. अरे भाई, sin has to be judged. sin का जजमेंट हो चुका है.
अच्छा सुनो, मेरे ऊपर कोई जैसे केस चला है, कोई केस चला जिसपे मेरे को पीनल एक्शन हुआ और इसका हर्जाना मैंने भर दिया। अब मैं काहे के लिए वापस हर्जाना भरना है मेरे को, ये काहे के लिए ये सोचते रहना कि अभी भी भरूंगा। लॉ में ऑन अर्थली लॉज वंस यू हैव बीन जज्ड एंड और उसके कारण आपको एक पनिशमेंट मिल गया, सब हो गया, उसके बाद वापस थोड़ी नहीं तू अभी भी वापस 10 साल बाद कहेगा नहीं तूने वापस वो पाप करा था तो इसके लिए तेरा जजमेंट होगा। नहीं हो सकता। तो तुम अपना इस चीज को लेकर के चल रही हो। When God has dealt it, when God has finished the judgment on it, and He's not remembering and He's saying there is no condemnation those who are in Christ Jesus, then it is our mind to be renewed as then He will come out of that guilt. या दूसरा उदाहरण ले लो कि अगर अभी एक केस चल रहा हो मेरे पास मर्डर का, जब तक केस डिसाइड नहीं होगा तो मेरे ऊपर तो एक बहुत बड़ा प्रेशर रहेगा ना। हमने खुदा पाप ने जजमेंट कर दिया, डिसाइड कर दिया, नाउ यू आर ब्लेमलेस, फिर आप लेकर बैठे, ही इज द जज ऑफ दिस होल वर्ल्ड। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज ने आपको अगर एक्विट कर दिया, सारा चीज देख दाख के और कहा कि इतना सा पनिशमेंट और ये खत्म, अब आप फिर भी कहोगे नहीं और मेरा तो जजमेंट होगा, दैट इज फूलिशनेस। कम ऑन आउट, कम आउट ऑफ दैट, आई प्रे फॉर यू, नेवर एवर रिमेंबर व्हाट हैव यू डन, यू आर फ्री। आपको बिल्कुल दिस द ब्लड ऑफ जीसस इज नॉट, वो ऐसा नहीं है कि कुछ ठीक ठाक है इरेज कर दिया या ढाप दिया किसी चीज। He has removed and made your slate clean as white as snow. That's in Isaiah. Crimson blood से था, कैसा कर दिया? White as snow कर दिया। अब तो मैं कोई पुराने अपने पाप को याद ही नहीं करता, करने की जरूरत है ही नहीं याद मेरे को कोई ऐसा, क्योंकि God says when God doesn't remember, why I should remember? Right. अच्छा लगा। Come out of this guilt consciousness. भूल जा तेरे जो भी तूने गलत किया। अभी जो लोग सेव नहीं है मेरे घर पे, उनका मैं सोचती हूँ कि टाइम रहते हुए वो भी सीखें ये सब चीजें, बट अभी भी वो आंखों पे जो कहते हैं ना वो पट्टी है, सैटिन ने बांध रखी, सेल्फ राइचियसनेस की पट्टी है। अब तू एक चीज क्लेम कर जो एक्ट्स में लिख रखा, मी एंड माय हाउसहोल्ड विल बी सेव्ड। प्रे लॉर्ड सेंड पीपल अराउंड देम, anointed people। और तुम्हारे को तो क्या जरूरत है, ये ऐसी एक दो चीजें करवा ले, कभी बिठा दे सामने, सारी चीजें पूछ पाछ के सब चीज सही करवा दूंगा। बट मैं नहीं चाहती मामू, यू नो आई पर्सनली रिस्पेक्ट यू इन द सेंस यू आर एल्डर टू मी, आपने मेरे को एज अ मेंटर बहुत कुछ सिखाया, तो आई डोंट वांट कि अगर उनके मुंह से कुछ निकले, यू नो दैट दोस वर्ड्स। अरे यार ये तेरे को लेना देना कुछ नहीं है, मेरे को होना चाहिए, तेरे को कहीं के दिमाग खराब हो रहा है इसमें, है? फिर तो मैं सारा गॉस्पेल प्रीच, मैं गॉस्पेल प्रीच करना बंद कर दूं, मैंने मेरी सेविका ही बंद कर दूं फिर तो। तुम्हारे माँ बाप या तुम्हारे कोई जानकार मेरे को कुछ बोलते, अरे ऐसा हो ही नहीं सकता। यू नो व्हाई आई बिलीव दैट, बाइबल में लिख रखा है, स्टीफेनस के लिए लिख रखा है, एक्ट्स में जब पढ़ना, ही वाज फिल्ड विद द होली गोस्ट एंड नोबडी कुड कन्फ्रंट हिम। और मेरे को आज नहीं हो गए, इतने साल हो गए लोगों को मिनिस्टर करते, ना वो छोड़, मेरे सासू ये लोग जो मेरे से एल्डर और सब मेरे, कोई कन्फ्रंट नहीं कर पाया। नहीं होगा ये सारा, ये सब शैतान तेरे दिमाग में डालो, तो तेरे से नाराज फिर भी नहीं होगा मैं। यीशु मसीह नहीं नाराज होता किसी में, मैं ही नहीं नाराज होता किसी में, बट आई वुड लव दैट दे विल कम आउट ऑफ इट। मगर अगर तुम इसको रोक दोगी तो दे विल नेवर नो द ट्रूथ। मैं रोकना नहीं चाहती, बट हाउ, हाँ ये रोक ही रही हो तुम, मेरा बेटा ये रोक रही हो तुम, अगर इस तरह से सोच रही हो। Satan is doing that, giving you a thought, नहीं इनकी वो कुछ हो जाएगा यार, ये मेरे एक तरह से इन-लॉज की साइड से हैं, ये सारा तुम्हारा ये कल्चरल प्रॉब्लम्स है ये सारी। लेट देम कम, ओपन अप, लेट देम रिसीव द वर्ड। और ये देखो कितना अच्छा प्लेटफॉर्म है, इजीली आई कैन, मैं जयपुर बैठ के मिनिस्टर कर सकता हूँ। ऐसा छोटा सा एक अपन कर ले, 3 या 4 जन जुड़ जाएं, मैं घर वाले लेट अस मिनिस्टर। मैंने ऐसे आई प्रेड ऑन द अदर डे व्हेन वी वर प्रेइंग इन दिस अदर टंग्स वाले, उसमें
वो एक लेडी थी, दुष्ट आत्मा से भरी हुई थी, सारी छुटकारा मिल गया। वो जिसके नेक में पेन रहता था ना, नेक में पेन नहीं The है, one- और एक इशू और भी था, सोना देवी करके, वो पास्टर की वाइफ है, शी गॉट डिलीवर्ड, पास्टर हनुमान की वाइफ, शी गॉट डिलीवर्ड फियर से। उसको डर लगता है सुसमाचार जाकर बताने की। मैंने कहा ये सवाल ही नहीं उठता, आज ही छुटकारा चाहिए तुमको। आई डिडंट वेट कि कभी जाऊंगा और तब करूंगा, बिकॉज आई एम नॉट द वन हु कैन डिलीवर। द अनॉइंटिंग कैन गो थ्रू मीडियाज, प्लेटफॉर्म्स एंड एवरीथिंग। Anointing breaks for you, and if you are anointed, you can. And the word when you send, word is spirit and truth. Anointing जाती है उसके साथ, जुए टूटते हैं, संगे होते हैं लोग। मैं भी बोलने की कोशिश करती रहती हूँ, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है नहीं है, बोलना शुरू करते रहे। देख एक चीज मैं बता दूं, किसी को एक बार बोलना अगर ठीक नहीं हुआ तो प्रॉब्लम नहीं है कुछ बड़ी, बिकॉज यू आर नॉट द हीलर। समझ, मैंने मिनिस्ट्री में शुरू में मेरे को भी ये था, और मैं बोलूंगा अगर उद्धार नहीं हुआ या हीलिंग नहीं हुई तो क्या होगा, तो उसमें मैं घबराता ही नहीं हूं, मैं, बिकॉज आई एम नॉट द वन हु इज हीलिंग। मैं जब बोलूंगा तो हीलिंग होगी, वो तो वचन के कारण होगी, अभिषेक के कारण होती है, नहीं हुई तो भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है एक तरह से। तो देयर आर अनटीन रीजंस, उन्होंने उसको ग्रास्प नहीं करा, कुछ नहीं करा, सब चीज। बट देन व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग, आई फाउंड देयर इज रिजल्ट। जब बोलता हूं तो हीलिंग होती है, डिलीवरेंस होती है, सब। देन आई डिडंट स्टॉप। फिर ये नहीं सोचा वो क्या सोचेगा, वो फलाना क्या होगा। शुरू में ये सब हमारे भी दिमाग में आता, अरे क्या सोचेंगे, नहीं। खुदा का वचन जब बोलता है दैट यू हैव टू बिकम, यू शुड ले हैंड्स एंड हील एंड ऑल, वंडरफुल, डू इट। सो आई एम एक्सपेक्टिंग नेक्स्ट डेट। चल करते हैं, 5:15 हो गए। कैन यू प्रे? प्रेयर कर दी। आप प्रेयर करो। अच्छा मैं कर, यस। Thank you, Lord, for this meeting. Thank you so much as you have given me, Mamu, as a mentor to guide through your ways, to guide through what you want to teach me, what you want to inculcate in me. Thank you so much for giving me the grace. Thank you so much for accepting me as your daughter. Thank you so much for each and every blessing that you have imparted on me. In your name today I ask deliverance for all my family members who are still under the control of Satan. May your righteousness flow through them. May your righteousness open their eyes and show them the glory which you have kept for them in the future and in the present world as well. Thanks a lot. Thank you so much, Lord, once again for showing your enlightenment upon me. I accept my flaws, I accept my sins, and I believe that my sins are being washed with your precious blood, Jesus. Amen. Amen. Be with me, guide me, keep me in your loving care. In fact, keep all of us in your loving care. Thank you so much for Mamu and Mami, for all my elders that you have provided me, that you have given to us, so that they are guiding us in each and every step of our lives. Thank you so much for making them the channels for our lives, so that we may learn more and more for your glory, Lord. In Jesus' name we ask this prayer. Amen. Amen. Okay, bye. God bless. Thank you.